Okay, we'll start our session. Let them join, others will join. In last lecture, we have started the first part of our unit number 5. Okay, the title of our chapter is, just I will go to the first now. Artificial intelligence for mechanical engineering application. In that, we have discussed related all about the fuzzy logic in last lecture, as well as we have started our ANN part. Okay, basics of ANN. ANN nothing but artificial neural network. Okay, in last lecture, we have finished the fuzzy controllers as well as artificial neural network. Okay, today we'll discuss about our history and background of the artificial neural network, neuron cell, feed forward neural network, okay, and the learning algorithm for neural nets. Okay, these many things today we'll discuss and we'll finish our this artificial neural network. Okay, just we'll go to the what we have seen in last lecture. Just we'll take one overview. Okay, this one is our block diagram of fuzzy system, any fuzzy system. Okay, we are providing the crisp input to the fuzzification. After fuzzification, it will provide that output, fuzzification output, to the inferencing engine or the fuzzy inferencing. Okay, that fuzzy inferencing, okay, it will analyze as per the rules, fuzzy rules. Okay, as per the fuzzy rules, it will analyze, and after analyzing this inferencing engine, it will pass the output to the this defuzzification. Again, this defuzzification, this fuzzification output, it will convert into the our crisp output, because machine can only understood the crisp inputs and outputs. Okay, machine फक्त crisp input आणि output फक्त understand करते. त्यासाठी आपल्याला again we have to convert similarly that into the crisp input. Okay, next we have discussed related to that fuzzification. What is fuzzy logic means what? After that, classical logics we are defining in the form of yes and no form. Okay, few example here I have written, means Boolean logic, like if someone says grass is green, okay, grass is green, then we can say that true or false. Okay, grass is green, then we can say that the statement is true, then we can define yes. Okay, yes in the form of 1 and 0. Okay, last time we have discussed this proposition logic. After that, we have seen the fuzzification process and one example of car. Okay, one video also we have seen related to that, how we actually carried out. Okay, last time we have discussed this part, and defuzzification also we have discussed in the last lecture. Okay, we have seen related to that videos, and we have started our biological neuron. What is the function of neuron? Neuronचं function काय असणार आहे तर to transmit the information from sensor to the our brain. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी जर बघितलं तर आपलं बायोलॉजिकल न्यूरॉन मध्ये जर बघितलं असेल तर त्या ठिकाणी जर 3 पार्ट असतात. कुठले असतात तर ओके, फर्स्ट वन इज द dendrites. This dendrites work as a sensor. Okay, and it will gather the information from surrounding and it will pass to the nucleus, and this nucleus will project the information to the brain with the help of this axon.
ओके एक्झॉनच्या साइन काय केलं जाणार आहे तर इन्फॉर्मेशन पास केली जाणार आहे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके हे काय असणार आहे तर हे डेंड्राइट्स म्हणजे काय असणार आहे तर आपले सेन्सर्स आहेत थोडके. हे सेन्सर्स काय करणार आहे तर जी काही सराउंडिंगची इन्फॉर्मेशन आहे ती कलेक्ट केली जाईल आणि ती कलेक्ट केलेली इन्फॉर्मेशन कुठं पास केली जाईल तर आपल्या न्यूक्लिया. हे न्यूक्लिया काय करणार आहे तर इट विल ट्रान्समिट दॅट इन्फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्झॉन. एक्झॉन म्हणजे काय तर एक आपल्या थोडकी पाईपलाईन आहे, एक पाईपलाईन. त्यामधून काय असणार आहे तर आपली इन्फॉर्मेशन पास होणार आहे. कुठपर्यंत पास होणार आहे ब्रेन पर्यंत पास होईल. आणि ब्रेन कसे आहे अगेन और to the brain or the brain consists of number of nucleus and depend upon that it will take the decision. Okay, decision घेतलं and inside that this signals it is passed in the form of electrical or the chemical form. जे काही सिग्नल्स आहेत हे इलेक्ट्रिकल किंवा केमिकलच्या फॉर्म मध्ये पास केले असणार. ओके तेच ह्या ठिकाणी मी मेन्शन केलं. बायोलॉजिकल न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज अ नर्व सेल is a cell that takes in, process and transmit information through electrical and chemical signals. It is on the basic elements of nervous system. Means similar to our nervous system. Okay, means in nervous system this dendrites will receive the information and transmit through the axon to the brain. And that information in the form of our electrical means we are passing the current from switchboard or the we can say that our तुम्ही जर बघितलं असेल तर एखादी लाईट ऑन ऑफ करण्यासाठी ज्या ठिकाणी बटन यूज करतो त्या बटन पासून जे लाईट बल्ब आहे त्यामध्ये जे काही आपण वायरने कनेक्ट केलं जातं ती जी काही वायर आहे त्या वायरला आपण काय म्हणतोय तर एक्झॉन असं म्हणतोय. अँड बटन इज आवर dendrites. Means when we press that button, okay, it will pass the electric signals and it will receive to the brain. Okay, similar function it will carry out. Okay, now the dendrites receive the input pulses from the nervous in the brain. Okay, again axon, okay, related to that only I have written. Next, okay, we have seen the one video also in last lecture. Okay, how actually it is carried out. Okay, again I have shown two. One is biological neuron and one is the artificial neuron. Okay, एक काय आहे तर biological neuron and artificial. From biological neuron only this artificial neuron is generated. आता ह्यामध्ये काय आहे तर त्या ठिकाणी बघा तर dendrites म्हणजे काय आहे तर these are the possible inputs. Okay, or the sensors which is attached to the processing element. And nuclei also it is processing unit. It will collect the information from the dendrites and it will pass to the another nuclei. Okay, दुसऱ्या न्यूरॉनला किंवा न्यूक्लियाला काय केलं जाणार आहे तर पाठवलं जाईल and after that nuclei it will pass up to the brain. Okay, brain pass kelele. Similarly here number of inputs are passed and it will process and it will provide it to the another elements. Okay, this is nothing but our artificial neuron. Means here the number of inputs x1 x2 x4 means we can attach 10 sensors and that 10 sensor output is attached to this processing element. This processed output it is passed to the next element and after that it will pass to the another, similar to our body neuron. Okay, ज्या पद्धतीने बॉडी न्यूरॉन वर्क होतं त्या पद्धतीने तुम्ही ह्या ठिकाणी बघू शका. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बिफोर न्यूरल नेटवर्क. आता जर न्यूरल नेटवर्कच नसतं तर प्रॉब्लेम काय झाला असता बघूया आपण त्या ठिकाणी. तर दिस कॉम्प्युटर फॉलो अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम. म्हणजे काय करणार आहे तर it will provide one instruction set to solve any complex or complicated problems. Okay, if it is not possible त्या ठिकाणी नसतं तर ते प्रॉब्लेम झाला. unless the specific steps that the computer need to follow are known the computer cannot solve a problem.
जर नसतं न्यूरल नेटवर्कच नसतं तर complex problem we cannot solve with the help of computers, although we cannot develop the complex games like your we can say that famous game, your famous game, now it is banned, PUBG, correct? PUBG might be you have seen, PUBG जर बघितला असेल तर that complex game cannot be possible without neural network. In that also we can use the neural networks. This restrict the problem solving capability of conventional computer to problem that we already understand and know how to solve. Okay. Next one, situation after neural network. Okay, after finding this neural network, what happened? Neural network learn by example, similar to human also. With the help of neural network, we can understood how the machine will smart as similar to the human. Means machine also understood the human behavior and accordingly it will work. They don't require programming always to perform specific tasks. Means continuous programming, it is not required to perform any task. With neural network, computers can do things that we don't exactly know how to do. ओके, मीन्स एखादा प्रॉब्लेम असेल आणि तो कसा सॉल्व्ह करायचा आहे तर बऱ्याच वेळेस आपल्याला समजत नसेल तर त्यावेळेस दिस न्यूरल नेटवर्क हेल्प्स अस टू सॉल्व्ह एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम्स. Okay, means before neural network and after neural network, what is the advantages and disadvantages we have seen. Now, history and background of ANN. Okay, actually, firstly, it is invented in 1943. Okay, पहिल्यांदा किती साली तयार केलेले आहे तर किंवा 1943 साली हा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी आलेला आहे. ओके, अँड artificial neural networks. Okay, and we are going to study in 2021. Now you can imagine already in this, okay, n number of researchers doing the work on this neural network, artificial neural network. Okay, just we have to follow that process and we have to again develop similar to that one. Although the study of human brain is thousands of years old. Okay, जर तुम्ही जर बघितलं तर ह्युमन ब्रेन वरती तर पहिले बराचसा रिसर्च झालेला आहे. ओके, हजारो वर्षापूर्वी. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स न्यूरल नेटवर्क टूक प्लेस इन 1943. मी पहिल्यांदा न्यूरल नेटवर्क वरती आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वरती डिस्कशन. When born a neurophysiologist and a young mathematician, Walter Pitts wrote a paper on how neuron might work. Okay, means one mathematics and one psychologist, they have firstly defined this, okay, neural network, how actually neural networks work. They modeled a simple neural network with electrical circuit. म्हणजे जे काही मॉडेल केलेलं आहे न्यूरल नेटवर्कचे इलेक्ट्रिकल सर्किट त्या ठिकाणी डेव्हलप केलं. After that, after 1943, after that it is developed in 1949. Donald Hebb reinforced the concept of neurons in his book. Okay, this organization of behavior, it pointed out the natural pathway are strengthened each time they are used. Okay, after that 1950s, okay, this researcher, okay, again IBM research laboratory lead the first effort to simulate a neural network. Okay, in 1950 only first neural network it is developed. Next, in IBM research laboratory, where it is developed, IBM research laboratory. You should remember this because sometimes it is asked in the MCQ when it is developed and first where it is developed. Okay, you must understood. After that 1956, okay, this researcher again project on artificial intelligence provided boost to both artificial intelligence and neural network. The stimulated a research in AI in the much lower level neural process part of the brain. Okay, next after that
1957, again imitating simple neuron function by using telegraph or the vacuum tube. Okay, the first application they have developed in 1957 with the help of this neural network. After that, 1958, Frank, okay, again this Frank researcher, they have developed work of prescription. He was, okay, again with the operation of eye of fly. Much of the process which tell a fly to flee is done in its eye. Okay, means 1958, again one Frank researcher developed related to eye. Next, after that, 1959, okay, the Stanford developed model they called Adaline and Medallion. These models were named from their use of multiple adaptive linear elements. Medallion was the first neural network to be applied to a real world problem. It is an adaptive filter which eliminates echoes on phone lines. This neural network is still in commercial use. Means firstly, in phones, landline phones, this Adaline and Medallion network systems are used. In 1961, again one researcher made unsuccessful attempt but proposed the backpropagation scheme for the multi-layer network. Next, after that, 1964, Taylor's constructed winner-take-all circuit with inhabitation among output units. 1969, again multi-layer prescription, MLP was invented by the Minsky and Pipet. Okay, this has they have developed. After that, 1971, developed associate memories. Next, 1976, Gail Carpenter developed adaptive response theory. After that, 1981, okay, they have progress on neural networks such halted due fear, unfulfilled claims, etc. until 1981. This caused respective voices to critique the neural network research. The result was to halt much of the funding. This period of stunted growth lasts through 1981. In 1981 only, in 1982, John, again one more researcher, presented a paper to National Academy of Science. His approach to create useful devices, he was likable, articulate, and the charismatic. Also, US-Japan Joint Conference on the Cooperative Neural Network, at which Japan announced their fifth generation effort resulted as US worrying about being left behind. So funding was flowing once again. Means at initially US has stopped that all the research on the neural network. After that, they have Japanese, they have developed and compete with the US, and after that US also started the worrying about the and providing fund to the research for the neural network. In 1985, American Institute of Physics began what has become an annual meeting neural network for computing. By 1987, the Institute of Electrical and Electronic Engineers, first international conference on neural network, drew more than 1,800 attendees. Okay, yes, these many counts for the international conference related to neural network. Next, after 1997, a recurrent neural network framework, long short-term memory, was proposed by these two researchers. In 1998, this Yan published gradient-based learning applied to the document recognition. Several other steps have been taken to get us to where we are now. Today, neural network discuss a prevalent, the future is here. Means now you can see here, see anywhere.
Okay, everyone is going to study in neural network or neural network. It is one part of our artificial intelligence. Means nowadays you can find, okay, all students are going for the artificial intelligence only. तुम्ही जर बघितलं तर आता सगळेजण बघा, तर मला कुठली पाहिजे तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ब्रांच पाहिजे, रोबोटिक्स पाहिजे, म्हणजे सगळे जे काय आहेत आतापर्यंत 1980 पर्यंत ओनली दे आर गोइंग टू डेव्हलप, but now it is mostly popularly applied in us, and that mostly used in our day-to-day applications like gaming. Okay, these neural networks. Okay, so it is more popular due to that more job openings you will find in this. The future, okay, for that only I have written the future is here in the neural network. Currently, most neural network development are simply proving their higher and higher capability day by day. Okay, means again and again it will goes on more and more develop. Now, suppose one example, there are 4 fruits, okay, banana, apple, okay, these are the 4 apples, and we have to choose one of it, okay, whether it is apple or not apple. The output is, okay, they have provided the number of fruits and I have to find, okay, is, and I have to separate from that all fruits only apple and not apple fruits. Then in that case we have to use this neural network. The neural network means kind, this is one element, another element, third element, fourth and fifth one. Okay, every element it will take the input, okay, of each fruit, and it will pass to the every another nuclei. Okay, जसं आपल्या ह्युमन मध्ये जर एखाद्या हॉट प्लेटला आपण धरलं तर आपले जे काही डेंड्राइट्स आहेत ते काय करणार आहे तर इट विल रिसीव the information from surrounding. Similarly, here also it will receive the information from surrounding and it will pass, okay, if it is depend upon the this nuclei. आता जेवढं तुमचे न्यूक्लिया जास्त असतील तर तेवढे काय असणार आहे तर accuracy of this finding apple and not apple is more. Okay, if you choose only a few nuclei then it is difficult sometimes. Okay, this banana also it will pass to the apple side. Okay, means number of neurals or the neurons it will create, okay, more accurate output. Okay, जास्त चांगल्या पद्धतीने output create केलं जाणार. Okay, means it will check at first stage of the first layer, second layer, third layer and at last fourth layer, and depend upon fourth layer it will pass apple or the not apple. Means out of these 4 fruits we have to choose apple or the not apple. Means we can say that number of layers or the number of neurons, okay, it will increase the accuracy of our, okay, output ची accuracy काय असणार आहे तर increase झालेली असणार आहे, तुम्ही बघू शकता. Okay, might be understood. Now next one is the feed forward neural network. आता feed forward neural network म्हणजे काय आहे तर त्या ठिकाणी तर, okay, the name itself, okay, means only the signals will pass in forward direction, not in reverse manner. Okay, हे सिग्नल काय केलं जाणार आहे तर फक्त समोरच्या साइडला किंवा समोरच्या न्यूक्लियरला पास केला जाणार आहे, rather than previous one ला न देताच समोर पास केला. Now this one is the very simplest method to, okay, neural network to find the any output. Now you can take the example only of fruit only. आता ह्या ठिकाणी फ्रूटचं एक्झाम्पल घ्या. या ठिकाणी 4 फ्रूट आहेत आणि ह्याच्यापासून मला काय करायचं आहे तर वी हॅव टू चूज द आउटपुट इज वेदर इट इज ऍपल ऑर नॉट. ओके, आपल्याला आउटपुट काय पाहिजे तर ऍपल आहे का नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी काय करणार आहे तर, ओके, दिस वन इज द इनपुट लेयर, this one is the output layer. In between number of layers are there, that layers are known as a hidden layers. ह्या दोन्ही इनपुट आणि आउटपुट लेयरच्या मध्ये जे काय लेयर असणार आहे ते म्हणजे कुठले लेयर असणार आहे तर हिडन लेयर असणार आहे. दिस हिडन लेयर will, okay, used for
finding accurate result or the accurate output to the system. Okay, accurate output find out करण्यासाठी ह्या hidden layerचा यूज करणार. Okay, number of layers. ओके, जेवढे नंबर ऑफ लेयर्स हिडन लेयर्स जास्त असतील तेवढे आपला आउटपुट जे काय असणार आहे ते काय असणार आहे तर प्रिसाइज असणार आहे. ओके, अंडरस्टूड. This is okay. I have written that only here. The simplest form of neural network where input data travels in one direction only. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असेल तर जो काही इनपुट असेल तर एकाच डायरेक्शननी मूव्ह राहील. ओके, इट कॅनॉट बी मूव्ह इन अगेन बॅकवर्ड साइड. पाठीमागच्या साईडला येणार नाही. एकदा समोर पास केला तर समोर समोरच तो मूव्ह होत राहील. वन डायरेक्शन ओनली. पासिंग थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नोड्स अँड एक्झिस्टिंग थ्रू output nodes where hidden layer may or may not be present. Input and output layer are presented here. Based on these, they can be further classified as a single layered or the multi-layered feed forward neural network. म्हणजे त्या ठिकाणी काय म्हणले तर बघा, depend upon these layers. Okay, this one first layers or input layer and output layer, in between the number of layers, okay, that multi-layer okay layers are there. Okay, for that it is known as a feed forward, other transmitted input only in one direction. For that only it is known as a feed forward neural network. Number of layer depend upon the complexity of the function. म्हणजे किती कॉम्प्लेक्स आहे तर त्याच्यावरती आपण काय करणार आहे तर हे न्यूरल नेटवर्क किंवा लेयर्स आपण त्या ठिकाणी डिसाइड करणार. इट हॅज युनिडायरेक्शनल फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बट नो बॅकवर्ड प्रोपोगेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी यामध्ये फक्त काय असणार आहे तर जर एकदा सिग्नल पास केला तर फक्त फॉरवर्ड मूव्ह होणार आहे, बॅकवर्ड त्या ठिकाणी मूव्ह होणार नाही. वेट्स आर स्टॅटिक हियर. ओके, दोज वेट्स आर स्टॅटिक हियर. म्हणजे त्या ठिकाणी चेंजेस होणार नाही जसं मूवमेंट होईल तसं. An activation function is fed by input which are multiplied by weights. To do so, classify activation function or step activation function is used. For example, the neuron is activated if it is above threshold and the neuron produces 1 as an output. Okay, or we can say that the neuron is not activated if it's below threshold, usually 0, which is considered as a -1. They are fairly simple to maintain. The are equipped with deal with data which contain a lot of noise. Next, some of the advantages and disadvantages of our neural network. Okay, which are those advantages of feed forward neural network is less complex, easy to design and maintain, fast and speedy, and high response to noise. Okay, means in that the signals are passed only in one direction and it will move forward only. Okay, due to that there is no complexity and it is highly okay output which will get the in very less time. Disadvantage feed forward neural network is cannot be used for deep learning due to absence of dense layer and back propagation. Okay, we cannot use for the deep learning. Now, this is the advantages and disadvantages of feed forward neural network. Next one is the learning technique in the neural network. The learning technique कोणते ते आपण बघणारच आहे. Before that, just I want to show you one video related to that. Just wait a minute. Am I eligible for a career in
इंजीनियरिंग आज का वीडियो बड़ा कमाल का है। टॉपिक का नाम है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। दोस्तों अभी तक हम लोग सिर्फ नोड्स के साथ खेल रहे थे कि एक नोड से जुड़े हुए उसके वेटेड सम क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन का टाइप क्या होता है। लेकिन अभी ये सब हम लोग एक साथ जोड़ देंगे और अभी न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे। एक टाइप का न्यूरल नेटवर्क आपके सामने है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये कई सारे लेयर्स हैं। ये हमने एक पर्टिकुलर अभी तक नोड के साथ डील कर रहे थे। अभी यहाँ पे बहुत सीरीज ऑफ नोड्स होंगे, मिलियंस ऑफ नोड्स होंगे, उसको सिर्फ मैंने स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया आपके सामने। तो ये जो है ये लेयर है इनपुट लेयर। दिस इज द इनपुट लेयर, जहां से आपके एक्चुअली जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो आएंगे, व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग द एप्रोप्रिएट आउटपुट। तो ये आपका हो गया इनपुट लेयर। अभी इस इनपुट लेयर के बीच में और ये जो है जहां से आपका आउटपुट जनरेट होता है, जहां से आपका कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट लेयर। और अभी इस इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में कई सारे हिडन लेयर्स हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? इस इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में कई सारे हिडन लेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हिडन लेयर हो सकते हैं। एंड याद रखना, जितने ज्यादा हिडन लेयर होंगे उतनी ज्यादा आपके डिसीजन की या फिर आउटपुट की एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्या बोला मैंने? जितने ज्यादा बीच में हिडन लेयर्स होंगे उतनी ज्यादा ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना आपका प्रिसीजन बढ़ेगा ऑफ द जनरेटेड आउटपुट और द टेकन एक्शन। अभी इसमें एक चीज समझते हैं दोस्तों, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्यों बोला है इसे फॉरवर्ड? इसके सबसे पहले एट्रीब्यूट्स बता देता हूं। ये जो है आपका नेटवर्क ये फॉरवर्ड नेचर का है। फॉरवर्ड नेचर मतलब इसमें कोई लूप्स फॉर्म नहीं होते। एक बार अगर कोई सिग्नल आगे चला गया तो उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, वो कभी पीछे मुड़ता नहीं, वो सिर्फ आगे ही आगे जाता है, एक लेयर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। कभी भी वो तीसरे से पहले या तीसरे से दूसरे पे नहीं आता, वो सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। कोई लूप्स नहीं होते, कोई फीडबैक नहीं होता। यहाँ पे याद रखना, कोई भी फीडबैक नहीं होता कि अगर ये फर्स्ट लेयर से सेकंड में गया और सेकंड का फीडबैक फर्स्ट को दे रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी लूप्स नहीं होते, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं बता दूं कि एक्टिवेशन फंक्शन हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। तीन टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन थे, एक था लीनियर, एक था हेविसाइड स्टेप और एक था सिग्मॉइड। सी दोस्तों, रिमेंबर, जो आपके आउटपुट लेयर के नोड्स होते हैं उसमें कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है, ये सोचने वाली बात है। जो भी आपके आउटपुट नोड्स होते हैं उनमें जो एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज करते हैं वो मोस्टली हेवी साइड स्टेप फंक्शन होता है। कौन सा होता है? हेवी साइड स्टेप फंक्शन। बिकॉज हेवी साइड स्टेप फंक्शन ओनली डील्स विद टू स्टेट्स, 1 और 0। it only deals with two states, 1 और 0। बिकॉज आपके जो आउटपुट नोड्स हैं वो डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो वहां पे हम डिसीजन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 एंड इन टर्म्स ऑफ 0। लेकिन जो बाकी के दो बचे हुए फंक्शंस हैं, दैट इज नथिंग बट द सिग्मॉइड फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन, वो हम इन दोनों लेयर्स में यूज कर सकते हैं। इधर वी कैन यूज दैट दोस टू फंक्शंस इन इनपुट लेयर और द हिडन लेयर। कौन से फंक्शन? सिग्मॉइड या फिर लीनियर फंक्शन हम इन दो लेयर्स में यूज कर सकते हैं एज ए एक्टिवेशन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हमें हेवी साइड स्टेप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये आउटपुट नोड्स आपका डिसीजन लेने में सपोर्ट देते हैं और यहाँ पे आपको एक तो 1 या फिर 0, ये दो स्टेट से ही डील करना होता है। सो दोस्तों अभी हमने देखा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, बड़े ही सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ एक डायग्राम के साथ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वर्किंग चल रहा है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन किस लेयर को कौन से बिलोंग होने चाहिए, उसके रीजन आपको दिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्म Okay, I hope you understood this feed forward neural network. Okay, now next part is learning technique in neural network. Okay, जर एखादं लर्निंग आहे ते कसं होतं कोण सांगू शकेल? तुम्हाला जर ह्यूमन असेल तर ह्यूमन मध्ये लर्निंग कशा पद्धतीने होतं, कोण सांगू शकेल का? हाऊ दॅट लर्निंग प्रोसेस इज ऑकर्ड? डायरेक्ट तुम्ही जन्म झाला का लगेच सगळं तुम्हाला लक्षात येतं का? सगळ्या गोष्टी लक्षात येतात का तुम्हाला? म्हणजे एक लहान बेबी आहे त्याला जर सुरुवातीला सगळ्या गोष्टी माहित असतील का? इट कॅनॉट बी और द ही डोंट नो अबाउट द आवर सराउंडिंग. ज्यावेळेस आपण एखाद्या गोष्टीला सपोज आई असेल तर कंटिन्युअस when we can say that okay आई आई आई, तर त्यावेळेस तो जो काही लहान बाळ आहे तोही काय करणार आहे तर त्या व्यक्तीला आई म्हणायला सुरुवात करणार. ओके, म्हणजे त्या वेळेस आपण काय करतोय तर
where forcefully we can say that persons, त्या बाळाला आपण फोर्सफुली सांगतोय की ह्या व्यक्तीला आई म्हणायचं, दुसरा जो काय ह्युमन आहे त्याला बाबा म्हणायचं, ओके, दुसऱ्या जे कोण असेल तर त्याला मावशी म्हणायचं किंवा ताई म्हणायचं, ओके. म्हणजे त्या ठिकाणी काय म्हणायला आपण फोर्सफुली तर सांगतोय. आपण ज्यावेळेस एखाद्या वेळेस म्हणतो त्या बेबीच्या समोर ही तुझी मम्मी आहे किंवा आई आहे, तर त्यावेळेस तो काय करतोय तर आपण फोर्सफुली त्याला सांगतोय की हे. आता बाळ सुरुवातीला म्हणतोय का आई, ही माझी आई आहे, हे माझे बाबा आहेत, हे माझे ताई आहे, असं म्हणतात का कधी? मीन्स वी कॅन फोर्सफुली वी कॅन ओके लर्न or the teach to that student, okay, this one is the your okay mother father, okay. लक्षात येते सगळ्यांना? म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग, जी काय पहिली लर्निंग आहे ती म्हणजे काय असणार आहे तर फोर्सफुली करतो, त्याला आपण काय म्हणतोय तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग, ओके. मग तुम्ही बऱ्याच वेळेस बघितलं असेल तर त्या ठिकाणी सुरुवातीला आपण त्या लहान बाळाला एक आमिष दाखवत असतो. आपण थोडक्यात सांगतो की तू जर आई म्हणला तर मी, त्या बाळानं आई जर म्हणलं तर आपण त्याला काय करतो तर चॉकलेट किंवा काय तर त्याला गोष्टीचा रिवॉर्ड देतो किंवा त्याला एक मोटिवेट करतो की जेणेकरून तो काय करेल तर त्या गोष्टीकडे अट्रॅक्ट होईल किंवा त्या व्यक्तीला तो तशा पद्धतीने. लक्षात येते? मग दॅट इज नथिंग बट आवर रिइन्फोर्स्ड लर्निंग. नेक्स्ट येतं म्हणजे सुपरवायझ्ड लर्निंग. सुपरवायझ्ड लर्निंग म्हणजे जे तुम्ही स्कूल कॉलेजमध्ये स्टडी करता ते म्हणजे काय असणार आहे तर सुपरवायझ्ड लर्निंग. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ओके, तुम्ही पहिलीला जाणार आहे, दुसरीला जाणार आहे, अप टू 10th 12th करणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे की मी जर ग्रॅज्युएशनला घेतलं, इंजिनिअरिंगला जर ऍडमिशन घेतलं तर ऑब्विसली मी इंजिनियर होऊनच बाहेर पडणार, ओके. म्हणजे त्या ठिकाणी काय केलं जाणार आहे तर सुपरवायझ्ड लर्निंग केलं जाणार, ओके. आणि अनसुपरवायझ्ड लर्निंग मीन्स वी कॅन से दॅट ओके ही डोंट नो अबाउट. अनसुपरवायझर्ड लर्निंग कधी स्टार्ट होतं तर ज्यावेळेस तुम्ही जॉबला जाता तर त्यावेळेस काय होतं तर तुम्ही अनसुपरवायझर्ड लर्निंग स्टार्ट होतं. म्हणजे काय होतं तर त्या ठिकाणी जॉबला गेल्यानंतर अनसुपरवायझर्ड म्हणजे तुम्हाला इथं असता तर शिक्षक सांगतील, जर बाहेर गेलं तर कोण सांगणार आहे का तुम्हाला? ओके, नो वन कॅन टीच यू okay how that industrial person will talk to each other, okay, how to that process is occurred in that industry, कशी प्रोसेस होते हे तुम्हाला माहित असणार आहे. म्हणजे तुम्ही काय करता तर बाय ऑब्झर्विंग यू कॅन रिमेंबरिंग मीन्स यू कॅन प्रोड्यूस. आता तुम्ही जर त्या ऑफिसमध्ये गेला तर त्या ठिकाणी काय असणार तर वेगवेगळे व्यक्ती असतील, तर तुम्ही त्या ठिकाणी काय करता मग ऑफिसवाले व्यक्ती वेगळे असणार आहेत, मीन्स यू कॅन प्रोड्युसेस ग्रुप्स, ओके. म्हणजे आता कुठले असेल ऑफिसमध्ये गेला तर ऑफिसचे वेगळे मित्र असतील, बाहेर आपले वेगळे मित्र असतील, घरी आला फॅमिली मेंबर हे वेगळे असतील. मीन्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम क्लस्टर्स ऑफ द ग्रुप्स अँड वी फ्रॉम दॅट क्लस्टर अँड ग्रुप्स वी आर गोइंग टू लर्न, ओके. त्या साईने आपण काय करतो तर शिकण्याचा प्रयत्न करतो, ओके. सिमिलरली हिअर ऑल्सो इन लर्निंग techniques in neural network also, here also similarly, okay, at initial stage if I know the input and output data, okay, we can use this supervised learning algorithm use. If I don't know anything then in that case, okay, तर मला काहीच माहित नाही तर त्यावेळेस काय करणार आहे तर I will use unsupervised learning. And if forcefully something we can do, okay, to get the reward or the okay gift from that, okay, जर एखाद्या वेळेस किंवा पेनल्टी आपण म्हणू, रिवॉर्ड किंवा पेनल्टी, तर त्या केस मध्ये जी काय असणार आहे तर ती जी काय असेल तर ती म्हणजे काय असणार आहे तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग. म्हणजे तुम्हाला आता त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुम्ही डेली कॉलेजला लवकर आला पाहिजे, अदरवाइज यू विल गेट fine, okay, you will charge as fine,
ओके, म्हणजे तुम्ही जर उशिरा आला तर तुम्हाला फाईन केलं जाईल. मीन्स बाय पेनल्टी वी कॅन प्रोड्यूस टू कम इन विदिन टाइम. ओके, विदिन टाइम मध्ये येण्यासाठी आपण पेनल्टी यूज करतो. किंवा रिवॉर्ड्स देतोय. काय वेळेस तुम्ही टॉपर आला तर वी आर प्रोव्हाइडिंग द ओके गिफ्ट्स टू यू. ओके, वी विल सी वन व्हिडिओ and after that we will go to that discussion. Okay, I hope understood that one. My job. तो गेट्स फ्रेशर्स में आपका स्वागत है. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग्स इन एआई, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग जो आती है वो है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट. और बहुत जगह पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है. और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लेवल से और रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि पीके मूवी की अगर हम बात करें या इलेक्शंस का जो एग्जिट पोल की बात करें, तो उसी के एग्जांपल्स के बेसिस पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं और इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूं. तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग से, तो जैसा कि मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो हमारा मेन एम क्या है कि कैसे मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाए. और किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का सबसे मेन फैक्टर क्या है कि वो खुद से लर्न करे. तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप की जो लर्निंग है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, ये मेन तीन लर्निंग है. वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स और भी है हमारे पास. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले मैं आपको एक बेसिक टेक्निकल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. तो यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा. मतलब कहने का क्या है, नाम से ही पता लग रहा है सुपरवाइज्ड, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर का मतलब एक टीचर है जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है. वो यहाँ पे कौन है, ट्रेनिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा का मतलब है हमारे पास ऑलरेडी इनपुट भी है, हमारे पास आउटपुट भी अवेलेबल है, और उसी इनपुट आउटपुट के बेसिस पे उस ट्रेनिंग डेटा को या उस लेबल्ड डेटा के बेसिस पे हम एक मॉडल तैयार करते हैं, और उस मॉडल में हम न्यू इनपुट डाल के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या वैलिड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा. कहने का मतलब क्या है, अगर एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो एग्जिट पोल, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने एग्जिट पोल दिया था इस लोकसभा इलेक्शन का. तो लोकसभा इलेक्शन की जो एग्जिट पोल है वो क्या है, एक ट्रेनिंग डेटा है. ट्रेनिंग डेटा का मतलब है हजारों लोगों से, लाखों लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया, और उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ यंगस्टर से लिया, यंगस्टर से भी लिया, बच्चों से भी लिया, बड़े बुजुर्गों सबसे लिया उन्होंने फीडबैक. और उस फीडबैक में है क्या, उनका इनपुट, और उस इनपुट के बेसिस पे एक आउटपुट की बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी, कांग्रेस को इतनी आएंगी, या इसको इतनी आएंगी, ये विनिंग कैंडिडेट है, ये लॉसिंग कैंडिडेट है. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा में डाल दिया, और ये हमारा ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. मतलब हमने मशीन को ये डेटा जो है वो दे दिया. अब लर्निंग एल्गोरिथम्स यहाँ पे काम करेंगे. कौन कौन से लर्निंग एल्गोरिथम्स है यहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे ने बेस एल्गोरिथम. जो ने बेस है वो क्या करता है, सुपरवाइज लर्निंग पे काम कर रहा है, जिसमें आपने इनपुट और आउटपुट जो है वो पहले ही डाल दिया. अब होगा क्या, अब आपने न्यू इनपुट दी. न्यू इनपुट यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, जो ओरिजिनल डेटा था, जो ओरिजिनल लोगों ने वोट किया, उसका जो डेटा जब आया, और उस डेटा को हमने क्या किया, मॉडल के ऊपर. मॉडल जो है किसके ऊपर बेस्ड था, जो एग्जिट पोल का डेटा था, जो एक डमी डेटा बना के एक फीडबैक के बेसिस पे जो आउटपुट आई थी, उसके बेसिस पे हमने मशीन को मॉडल तैयार किया. मॉडल मतलब एक प्रोटोटाइप किया कि ये जीतेगा, ये हारेगा, ये विनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है. अब होगा क्या, जैसे ही हमने न्यू डेटा उसमें डेटा डाला, उस मॉडल के बेसिस पे उसने कुछ आउटपुट दिया. अब हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, अगर आपका आउटपुट वहां पे करेक्ट आ रहा है, मतलब जो आपने एग्जिट पोल में बोला था वही आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपने जो ट्रेनिंग डेटा दिया वो डेटा जो है बहुत ही अच्छे लेवल का डेटा दिया, बहुत ही रिफाइंड डेटा दिया, और आपका एल्गोरिथम जो है वो प्रॉपरली लर्न करके क्लासिफाई कर रहा है. क्लासिफिकेशन का मतलब है कि डेटा को क्लासिफाई करना कि ये जीतेगा, ये हारेगा, इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑलरेडी मशीन को हम इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं. तो इसको बोलते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग. अब सुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर हम बात करें, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है
पीके मूवी की अगर हम बात करें, तो जैसे ही आमिर खान अपने दूसरे ग्रह से पृथ्वी पे आता है तो उसको कुछ नहीं आइडिया कि क्या कौन आदमी कौन औरत कौन बच्चे कौन बुजुर्ग, कुछ नहीं पता। तो वही सबसे पहला, अगर आपने डेफिनेटली वो सीन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसको यहाँ पे ये नहीं पता कि लोगों की चमड़ी कैसी है। तो वो कहता है कि किसी की चमड़ी जो है वो ढीली ढाली, किसी की चिपकी हुई, किसी की चमड़ी रंग रंगीली सी है। तो ये एक्चुअल में क्या है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसके पास इनपुट है। इनपुट कहां से आ रही है? सेंसर से, मतलब आंखों से वो देख रहा है, कुछ जज कर रहा है, और उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनकी जो दिखने के चलने के अंदाज के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, ग्रुप कर रहा है, क्लस्टर बना रहा है। वहां पे क्लस्टर का मतलब क्या है कि उसने देख लिया कि अगर किसी की मूछें हैं, किसी की हाइट अच्छी है, या किसी ने कुर्ता पजामा टाइप ढीले ढीले कपड़े पहने हैं, तो वो मतलब उसने एक पुरुषों वाली कैटेगरी में रख दिया, मतलब जेंट्स वाली कैटेगरी में रख दिया। ऐसे ही उसने लेडीज की कैटेगरी बनाई, खेलने वालों की अलग बनाई, बच्चों की अलग कैटेगरी। ऐसा नहीं कि वो कैटेगरी बिल्कुल सही है, एक 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 फर्स्ट लेवल पे उसने क्या किया, ग्रुप बना दिए, क्लस्टर बना दिए। तो ये क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं है। उसको नहीं पता कि ये चीज क्या है, और धीरे धीरे वो लर्न कर रहा है, अपने आप से लर्न करते करते वो क्या कर रहा है, एक्चुअल जो आउटपुट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, के मीन जैसे कि एल्गोरिथम को हम यूज करते हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं, और जो सेम टाइप के बंदे हैं उनको एक ग्रुप में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग जो है, ज्यादातर मशीन्स आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग में ही आती है, क्योंकि मशीन्स के पास अपना तो ब्रेन है नहीं। तो ऑब्वियसली वो क्या करती है, उनको हमने सुपरवाइज्ड देना पड़ता है, मतलब उनको पहले डेटा देना पड़ता है, उसके बेसिस पे वो कुछ कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं, या कुछ डिसीजन जो है वो मेक करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड की अगर हम बात करें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास रिवॉर्ड एंड पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। रिवॉर्ड एंड पॉलिसी मतलब कहने का कि हमारे पास एक एजेंट है, एजेंट मतलब कोई भी ले लो, जैसे पीके में आमिर खान जो है वो एक एजेंट है। उस एजेंट ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, कहाँ, इन्वायरमेंट, जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है उसके अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म किया, और उस एक्शन के बेस पे उसको या तो कुछ रिवॉर्ड मिला, मतलब कुछ प्लस में मिला, या कुछ नेगेटिव मिला, जिसको पेनल्टी बोल सकते हैं। और स्टेट जो है वो कुछ चेंज हुई। स्टेट चेंज होगी क्या, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ चेंज किया, फिर उसने उसके बेसिस पे कुछ पॉलिसी बनाई, और नेक्स्ट टाइम उस पॉलिसी के बेसिस पे वो उसको अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। मतलब आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वो 50 रुपीज का नोट जो है, 50 रुपए का नोट देता है, और उसको उसके बदले में गाजर मिलती है। तो उसको क्या लगता है यहाँ पे कि जैसे उसने एक्शन परफॉर्म किया, 50 रुपए का नोट दिया, वहां पे स्टेट चेंज हो गई, और रिवॉर्ड क्या मिला, गाजरों का एक पूरा बंडल दे दिया। अब होगा क्या, उसने सोचा कि उसने एक पॉलिसी बनाई कि इस बंदे की जो तस्वीर है जहां जहां पे लगी है उसको उठा लो। तो वो सारी जगह से महात्मा गांधी की तस्वीर उठा के लाता है, और उस बंदे को दोबारा देता है। जैसे ही वो दोबारा देता है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो वो बाद में यही सबसे बड़ा मैसेज भी वो देता है कि इस फोटो की जो कीमत है सिर्फ एक ही कागज पे, बाकियों पे नहीं है। तो ये एक्चुअल में एग्जांपल क्या है, रीइंफोर्समेंट का, जहां पे वो पेनल्टी और रिवॉर्ड के बेसिस पे एक पॉलिसी बना रहा है, और उस पॉलिसी में चेंज करते करते वो क्या कर रहा है, लर्न करता है। जनरली ये होता है गेम्स के अंदर। गेम्स में आपने एक स्टेप लिया और आपको पॉइंट मिला, पॉजिटिव में पॉइंट मिला या नेगेटिव में पॉइंट मिला, उसके बेसिस पे आप एक पॉलिसी डिजाइन करोगे कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा स्टेप या इससे सिमिलर स्टेप चलना चाहिए या नहीं। तो ये बेसिकली एग्जांपल है। आप सबसे पहले जो है अनसुपरवाइज लर्निंग से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, कि जहां पे कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ हमारे पास इनपुट ही इनपुट है, हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे वो अपने बेसिस पे कुछ क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर कुछ भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर कलर, बेस्ड ऑन देयर कि वो कैसे दिखते हैं, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे क्लस्टर बनाएगा। फिर धीरे धीरे उन क्लस्टर्स को रिफाइन करेगा। कल को हो सकता है और लोगों से उसको फीडबैक मिली, धीरे धीरे करते करते वो जो है क्लस्टर्स को रिफाइन करता जाएगा। जब एक बार क्लस्टर बन गए, अब उसने जैसे ही देखा एक ड्रेस पहनी हुई लड़की को, तो साथ के साथ उसको पता लग जाएगा कि ये क्या है, लड़की है। तो ऑब्वियसली वो किस तरफ डालेगा, वो क्लासिफाई करके उसको लड़कियों वाले ग्रुप में ही डालेगा। मतलब पहले अनसुपरवाइज्ड करते करते वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में पहुंच जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में हम जनरली यूज करते हैं क्यू लर्निंग मेथड। बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन अगर इतने एल्गोरिथम्स को भी आप कर लेते हो, इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथन, आप मैटलैब पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आर प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। थैंक यू।
Okay, I hope you understood this 3 types of learning. Okay, which are those? Supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Okay, you have seen that supervised learning, in that considering yourself as a student sitting in classroom where your teacher is supervising you and how you can solve the problem or whether you are doing correctly or not. Likewise, in supervised learning, input is provided as a labeled data set. A model can be learned from it to provide a result of the problem easily. Next, okay, just unsupervised learning. This is learning algorithm is completely opposite to supervised learning. In short, there is no complete and clean labeled data set in unsupervised learning. Unsupervised learning is self-organized learning. Its main aim is to explore the underlying pattern and predict the output. Okay, these are the some. Okay, just go through it. You will. And last one is the reinforcement learning. It is neither based on supervised learning nor supervised learning. Moreover, here the algorithm learn to react to an environment on their own. It is a rapidly growing and moreover producing a variety of learning algorithms. These algorithms are useful in the field of robotics and gaming itself. Okay, in that these algorithms are very useful. Okay, now we will see the comparison between supervised machine learning, unsupervised, and reinforcement machine learning. Okay, now as per definition, learn by using labeled data. Okay, supervised मध्ये काय असणार आहे तर ती जी काय लर्निंग मेथड असणार आहे तर ती कसं लेबल वाइज डेटा ने लर्न करणार. Here trained using unlabeled data without any guidance. Okay, trained using unlabeled data. And and the last one is the reinforcement, means work on interacting with the environment. Okay, you can consider unsupervised learning means, or the unsupervised machine learning is your born baby. Supervised machine learning means, okay, you are studying in the classrooms, and reinforcement after, okay, at the time of job. Okay, job च्या वेळेस जो काय असणार ते reinforcement learning. हे 3 गोष्टी लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. अनसुपरवाइज म्हणजे तुम्ही जन्म झाल्यानंतर जे काही गोष्टी शिकता ते अनसुपरवाइज लर्निंग मध्ये येतात. सुपरवाइज म्हणजे जे शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये शिकता ते सुपरवाइज लर्निंग येतं. आणि रिइन्फोर्समेंट म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस ग्रॅज्युएशन होतं त्यावेळेस जे असेल तर ते काय असणार तर अनसुपरवाइज लर्निंग. Okay, now you can you listen? सगळ्यांना आवाज येतो ना? Okay, we are discussing about our supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Okay, after that, okay, these are the as per type of data, type of problem, supervision, algorithm, aim, and application depend upon that it is classified. Just go through it. Otherwise, in next lecture, I will explain each and everything. Okay, if you have any problem, you can ask. Otherwise, you can write your roll number in chat box and you can leave the meeting. No problem.